Okay, lecture 5 of electrostatics 1, chapter 1. So we'll see the homework first. This was the question right in front of your screen. If Q naught is at the midpoint, find the net force on it. Both side capital Q charges are there. Okay, so force, suppose this is your A, this is point B, and this is point C. So force on C by A will be K Q naught upon R by 2 ka square, and that will be this side, force on C by A. And other charge, this charge B, will apply the force this side because both are positive. So therefore force on C by B will be K Q naught upon R by 2 whole square. So this is towards right, this is towards left, and both are equal. So F net will be force FCA, force on C by A, minus force on C by B. So this is K Q naught by R by 2 ka square minus K Q naught R by 2 ka square. Both are equal and opposite, therefore 0. So without solving also we could have said both are equal and opposite, therefore net force will be 0. Direct you can write. Clear? It is according to vector law, root of Fn square plus F2 square plus 2a Fn F1 F2 cos 180. Fn and F2 are equal, both the forces are equal, and angle is 180. So with that also it will be 0. Or you can directly see identical situation, distances are also equal. Why we are taking R by 2? Because points A, from this point charge is at R by 2, and this is also from this point charge is at R by 2, and the distances are taken from the point, distances between the two charges, and for this, in fact, between this charge and this charge, distance is R by 2. Between this and this, R by 2. So distance between the two charges is taken, that is R by 2 in this case, because we are writing the force on Q naught. We are not writing the force between A and B. Right? When we write the force on this B, then charge at A will be applying this side force, charge at C will also be applying this side. For C we will be taking R by 2, for A we will be taking R. So in this case force on B you can calculate it, that will not be 0. A will be applying the force, and in that case distance R will be taken. C will be applying the force on the charge at B, in that case distance R by 2 will be taken. That you can find out. Non-zero will be the answer. Now let's see what is the other homework assignment. This is the coming here, question number 11th है ना. 11th में क्या आंसर होगा? It will be what is the effect on the force between Q1 and Q2 if third charge Q3 is. So what is the equation relation for force between Q1 and Q2? Mod of Q1 Q2 by R square. This is the distance R. So does the Q3 comes in this relation? No, Q3 is not there, therefore no change. So Q3 is not changing the force between Q and Q2, which is given by the Coulomb's law, right? And if question is asked, find out the net force on Q1, in that case it will change. On Q1, Q2 will apply the force this side, Q3 will apply the force this side, net force will change. But it is not asked net force, it is the force between the two charges which remains same, which is given by Coulomb's law, K Q1 Q2 by R square. Okay. Now next question, two similarly and equally charged identical metal A and B, yesterday I explained, A here, B here, and repel each other with the force. This much is the force. The first equation between these two
will be k q square by r square, q1 q2 will become q square is equal to f naught initially कितना फोर्स है f naught ये और दिस साइड मैग्नीट्यूड. तो इट इज़ गिवन. तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस है ना, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई इक्वेशन 1 से. नाउ व्हाट इज डन, फाइनल फोर्स निकालना है. फाइनल फोर्स ऑन सी बाई ए, फाइनली नहीं सॉरी नॉट फाइनल फोर्स. नाउ सी इज जस्ट टू दिस and kept here. If C was uncharged, suppose okay this is A and this is C, ठीक है. इसमें से कुछ चार्ज चला जाएगा Q by 2, इस पे चला जाएगा Q by 2 बचेगा इस पे, बिकॉज टोटल चार्ज का आधा आधा. तो C will acquire Q by 2 from A and then we are keeping the C at mid point, ठीक है. तो अभी 3 चार्जेस, एक यहाँ पर है ओके. तो सी पर हमें नेट फोर्स निकालना है विच हैज़ द चार्ज Q by 2 और ए का भी Q by 2 हो गया. तो फाइनली क्या हो रहा है, फोर्स ऑन सी बाई ए, फोर्स ऑन सी बाई ए, सी पर ए कितना फोर्स लगा रहा है इधर एफ सी ए, कितना होगा के, दोनों के पास चार्ज Q by 2 है तो Q by 2 का स्क्वायर कर दिया. डिस्टेंस दोनों के बीच में R by 2 है, ये देख रहे हैं R by 2 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, राइट साइड में लगा रहा. अभी फोर्स ऑन सी बाई बी, सी पर बी इधर लगाएगा एफ सी बी. तो के इस पे चार्ज Q by 2 है तो ये पुट कर दिया, इस पे चार्ज Q है तो ये पुट कर दिया. Q1 Q2 डिफरेंट है, डिस्टेंस R by 2 है. इसको सॉल्व किया तो ये 2k Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया लेफ्ट, ये लेफ्ट में है तो दोनों अपोजिट है. तो नेट फोर्स में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा वेक्टर लॉ से. तो दिस माइनस दिस, तो ये के क्यू स्क्वायर बाई आर, बट के क्यू स्क्वायर बाई आर इज़ वॉट 2 × 10⁻⁻⁵, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है ना. एंड टूवर्ड्स ए बिकॉज दिस इज़ बिगर, ये वाला जो फोर्स था इस पे चार्ज जो है Q1 Q by 2 था, तो ये बी वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज़ टूवर्ड्स ए. ठीक है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE में आया हुआ है क्वेश्चन. अगेन इट कैन बी आस्क्ड विथ स्लाइड चेंजेस इन वैल्यूज. ठीक है. इसको ऐसे भी दे सकते थे, सी को इसके ऊपर भी टच किया फिर यहाँ पे रख दिया गया, तब फोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख के फिर से निकालना पड़ेगा हमें. गॉट इट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Q1 Q2 इज गिवन है ना, 1 माइक्रोकुलाम एंड -1 माइक्रोकुलाम. पोजीशन वेक्टर्स दिए उनके है ना, एंड ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था. तो ये फार्मूला है ना. तो इसमें हमें क्या निकालना है, R21 निकालना है ना. उससे पहले फिर हमें R1 निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर से, कोऑर्डिनेट्स दिए ना. R1 का जो है 1 2 है तो i कैप प्लस 2j कैप, R2 का कोऑर्डिनेट्स जो है 2 3 है तो 2i कैप प्लस 3j कैप हो गया है ना. तो R21 जो है R2 माइनस R1 होता है ना. फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दोनों वेक्टर को सेपरेट कर दिया तो ये आ गया. उसके मैग्नीट्यूड के लिए ये 1 है ये 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कोएफिशिएंट का स्क्वायर होकर ऐड होता है, √2 हो गया. फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपना जो R21 जो आया था, ये R21 जो आया था अपने पास i कैप प्लस j कैप है. ठीक है. और उसका मैग्नीट्यूड √2 निकाला तो डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा R21 आ गया है ना. बस तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, साइन के साथ ये माइनस है देखो, तो ये सब पूरा सिंप्लीफाई किया तो इतना आ जाएगा. ठीक है. न्यूटन में दूसरा वेक्टर जो है इसका माइनस होगा तो ये माइनस माइनस चला जाएगा यहाँ से, तो इतना आ जाएगा. ठीक है. और ये वाला भी है ना, कैसे करेंगे, दोनों आइडेंटिकल सिचुएशन है, Q Q Q है ना. तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इधर लगाएगा के Q1 Q2, ये दोनों इक्वल ही आ रहेंगे. देखो मैग्नीट्यूड में एंगल 60 है तो वेक्टर लॉ से निकाल लिया हमने √3 टाइम्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ईच. इसमें 20 है 120 है तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. जब हम सॉल्व करते हैं मैग्नीट्यूड फिर से दोनों के सेम है ना, तो फिर से कितना आएगा, एफ नेट विल बी, जब 120 होता है तो अपना एफ ही आता है फिर, फोर्स ड्यू टू ईच, फोर्स ड्यू टू ईच है तो कितना होगा
KQ²/R² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, एंड 16 आज देखेंगे हम, ये होमवर्क में रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द new topic. Now today is we are going to see the field, electric field, है ना। तो electric field we are going to see, है ना। Already about the force we have seen. Now electric field is the new physical quantity which we are going to learn. In fact, okay, field जो है, जैसे हमने देखा क्रिकेट की फील्ड होती है ना, और ऐसे ही चार्ज, each charge has got its own space, own field, है ना। field is what? Space around the charge where other charges will experience the force. तो ये क्या होता है, फील्ड क्या होता है, एक चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होता है, वहाँ पर दूसरे चार्ज अगर आएंगे तो उनके ऊपर फोर्स लगता है ना। तो फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी चार्ज की, उसके आसपास कितनी फील्ड है, तो उसके लिए नया टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको भी हम ब्रीफली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला करेंगे। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ई, है ना। तो ये फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो सपोज एक कोई स्पेस है, वहाँ पे किसी चार्ज की फील्ड है, किसी और चार्ज की फील्ड है, तो हमें चेक करना है इस पॉइंट पर उस चार्ज की फील्ड कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक 1 कूलम चार्ज ले आएंगे, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उतनी ही फील्ड होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट में किसी दूसरे चार्ज की। तो लेट अस सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दो, कितना फोर्स, सपोज उसके ऊपर 10 न्यूटन आ रहा है, तो वहाँ पे फील्ड जो है 10 न्यूटन होगी। सपोज उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 20 होगी, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1 कूलम हो। सपोज तुम्हारे पास Q0 है, Q0 कूलम है, Q0 को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो उसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो जितना फोर्स लग रहा है, कितना चार्ज, उसको डिवाइड कर दो, है ना। 1 कूलम का मतलब ये होता है कि Q0 कूलम पर F लग रहा है, तो डिवाइड करने से ऑटोमेटिकली 1 कूलम पे मिल जाएगा। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफाइंड। तो फील्ड इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, प्लेस फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर हमने Q0 रखा, उसके ऊपर फोर्स है, तो दोनों का जो फोर्स F है, दोनों का रेशियो होगा F/Q0। वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्पेस में उस पॉइंट पर फील्ड होगी किसी दूसरे चार्ज की, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा ही यूनिट उसकी न्यूटन पर कूलम, बिकॉज फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम उस पर ऐसा ही यूनिट हो जाएगी, है ना। और जितना छोटा Q0 रखेंगे, फॉर गुड रिजल्ट Q0 शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट ऑफ Q0 शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना। तो सो दैट E should not be what is called, जो source charge should not be disturbed. If you keep it bigger charge, so it will be affecting the distribution of the source charge distribution of source charge. इसलिए छोटे से accurate result मिलते हैं। और क्या पॉइंट है, ये वाला देखो, E is independent आप, यहाँ ये इनफैक्ट ये इंडिपेंडेंट है, let us make it proper. E is independent of E is independent of टेस्ट चार्ज, है ना। कैसे बोल सकते हैं, देखो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो देखो इसको ऐसे समझो, अगर तुमने सपोज 1 कूलम रखा, उसके ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10/1 10 आ जाएगा। फिर 2 कूलम रखा तो उसके ऊपर फोर्स भी बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। रेशियो जो है 10 ही रहेगा, बिकॉज टेस्ट चार्ज विल नॉट डिसाइड हाउ मच फील्ड इज देयर। वो तो किसी और किसी और चार्ज के, जिसको सोर्स चार्ज बोला जाएगा आगे चल के। तो अगर हम बड़ा चार्ज रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके ऊपर, है ना। तो रेशो उतना ही रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर सपोज फील्ड 10 ऐसा यूनिट है, तो चार्ज तुम चेंज करते जाओ, फोर्स भी चेंज होता जाएगा, रेशो विल बी 10, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज है, उसको टेस्टिंग के लिए लाते हैं, ठीक है। तो E इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जहाँ जितना फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी, है ना। इसको ऐसे इमेजिन कर लो, सपोज तुम्हारे फ्रेंड के पास चार्ज है, ही इज़ फुल्ली चार्ज विद द पॉजिटिव वैल्यू,
है ना, और तुम टेस्ट चार्ज हो, है ना, तो उसके आजू बाजू में खड़े रहोगे तो तुम्हें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जहाँ भी खड़े होगे तुम्हारा फ्रेंड जो है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तुम भी टेस्ट चार्ज हो, तुम्हारे पास भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो तुम्हें आउटवर्ड फोर्स लगेगा। जहाँ भी खड़े हो जाओ, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं उसको, है ना, तो वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। सपोज तुम्हारे फ्रेंड के पास निगेटिव चार्ज है और वो सोर्स है, सोर्स ऑफ द फील्ड है, तो वो, और तुम टेस्ट चार्ज हो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, तो उसमें क्या होगा, तो तुम्हें फोर्स इनवर्ड लगेगा अपने फ्रेंड की तरफ, तो वहाँ पर फील्ड जो है रेडियली इनवर्ड होगी। तो नेगेटिव चार्ज की देखो, नेगेटिव चार्ज की फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो टेस्ट चार्ज को खींचेगा अंदर की तरफ ये नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। सपोज पॉजिटिव चार्ज है जिसकी हमें फील्ड निकालनी है, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर हमेशा आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, है ना, तो रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती है ना, ये सोर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेस्ट चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स चार्ज जिसकी हम फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, है ना। पहले डायग्राम में सोर्स चार्ज नहीं दिखाया, अभी हम आगे चल के बनाएंगे सोर्स चार्ज, है ना, जिसकी हम फील्ड निकालेंगे। तो सोर्स चार्ज कैन बी डिफरेंट, है ना, तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो सकते हैं, बट हमें टेस्ट चार्ज से, है ना, तो मैं अपने आप को एक टेस्ट चार्ज बना लो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और वहाँ पे खड़े हो जाओ, जिधर तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा वही फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। सपोज इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है पेपर पे पड़ा हुआ है ना, पेपर पे तुमने चिपकाया हुआ है ना, इसकी हमें फील्ड पता करनी है नियर टू योर आइज़, अपनी आँख के पास जो है, ये 3 स्पेस में होगी, 3 डायमेंशन होगी। बुक में तो हम, नोटबुक में तो 2 डायमेंशन बना रहे हैं, तुम्हारी आँख के पास जो है इस सोर्स चार्ज की फील्ड किधर होगी, तुम अपनी आँख के पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, है ना, वो तुम्हारे, इट विल बी कमिंग टूवर्ड्स योर आइज़, है ना, तो रेडियली आँखों की तरफ आएगी फील्ड, है ना। अगर ये नेगेटिव है तो इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम योर आइज़, है ना, डाउनवर्ड। तो कहीं भी पोजीशन कर लो अपने आप को, और अपने आप को अपनी आइज़ को टेस्ट चार्ज समझ लो, है ना, ऐसा समझ लो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये अगर पॉजिटिव होगा तो तुम्हारे पास फोर्स रेडियली अवे लगेगा, है ना। नेगेटिव होगा तो यू विल बी फीलिंग अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स इट, नीचे जाने की कोशिश करोगे। तो जिधर टेस्ट चार्ज जाने की कोशिश करता है तो उधर ही फील्ड होती है। तो बस सिंपल रूल है, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड जो है आउटवर्ड होती है, फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। तो ये यू जस्ट रिमेंबर लाइक दैट। और 3 डायमेंशन है ये नहीं कि ये पेपर पे ही है, नहीं, 3 स्पेस 3D है, स्पेस कर्व है ये, है ना, राइट। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो समझ लो एरोज बाहर आ रहा है उससे, और नेगेटिव चार्ज है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें उसकी फील्ड बतानी है। तो समझ लो नेगेटिव चार्ज जो है एक टारगेट जैसा, उसके ऊपर एरोज आके फिट लग रहे हैं, है ना। तो जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालनी है वहाँ से एरो स्टार्ट करो और सोर्स चार्ज की तरफ नेगेटिव जो चार्ज है उसकी तरफ एरो ड्रा कर दो, है ना, जैसे ये है। यहाँ पे होगा तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी और ये पॉजिटिव में आउटवर्ड जाएगी, है ना। यहाँ पे तो ऐसे जाएगी फील्ड, इस जहाँ से फील्ड निकालनी है उससे एरो स्टार्ट करो। देखो इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड निकालनी है तो एरोस की तरफ आएगा, तो फील्ड की डायरेक्शन इसी की तरफ है, ऐसे आएंगे एरोस, ठीक है, सब अंदर की तरफ आएंगे। जिस पॉइंट से स्टार्ट करनी, जिस पॉइंट पे बतानी है वहाँ से एरो स्टार्ट कर दो, गॉट इट। तो सिंस फील्ड इज सेंट्रल, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स चार्ज विद द पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ से, और जो सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड चाहिए, तो दोनों को ज्वाइन कर लो। तो सेंट्रल फील्ड है, या तो अवे आएगा एरो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड आएगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये आगे हम काम आएगा ये डायरेक्शन, देयरफॉर जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्दर। तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन द चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ई इज इक्वल टू F/Q,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो F इज इक्वल टू क्यू ई। मतलब यहाँ पे देखो डायग्राम में ये चार्ज क्यू पड़ा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसके बाद कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है ना। तो ये ऊपर जो डेफिनेशन सीखी थी हमने फील्ड की उसी को यूज़ किया, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स निकालना है किसी चार्ज के ऊपर क्यू है और फील्ड ई है वहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, ओके। इफ़ ई इज़ यूनिफॉर्म तो फोर्स विल आल्सो बी यूनिफॉर्म। अगर ई चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होने लगेगा ना, राइट। तो अभी इसमें देखते हैं हम आगे, इसका एक क्वेश्चन करते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ चार्ज क्यू ऑफ मास m इज रिलीज इन द यूनिफॉर्म फील्ड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। सपोज ये फील्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ पे चार्ज क्यू को हमने छोड़ दिया है ना, ठीक है। तो इसके बाद फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितने लगेगा, क्यू ई। तो उससे एक्सेलेरेशन बनेगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, एक्सेलेरेशन मिल गया। तो यूनिफॉर्म है, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होता है एक्सेलेरेशन, तो काइनेमेटिक इक्वेशन लग जाती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू ज़ीरो है, ए हमने निकाला है क्यू ई बाई एम इंटू टी, यही आंसर हो जाएगा, क्यू ई टी बाई एम। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी, यू तो ज़ीरो ही है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए की वैल्यू हमने निकाली है, तो यही आंसर हो जाएगा क्यू ई टी स्क्वायर बाई 2m, है ना। अगर फील्ड वेरिएबल है तो फिर हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, तो एक्सेलेरेशन को डी वी बाई डी टी करके इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया हुआ है उस पर बेस, वेरिएबल फील्ड के लिए, तो इंटीग्रेशन की यूज़ करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन में भी एच टू द पावर एन का फार्मूला जनरली लगता है, तो उसको याद करना पड़ेगा। एच टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एच टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो आगे चल के करेंगे क्वेश्चन उसका। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, फील्ड जो है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। वन किसी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख दो, जितना फोर्स लग रहा है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अगर क्यू नॉट कूलम चार्ज है तो टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, तो रेशो कितना फोर्स लगा, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, और उतनी इलेक्ट्रिक जितनी वैल्यू आएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर टेस्ट चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ना। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो वही डेफिनीशन, जो डेफिनीशन है एफ अपॉन क्यू, ये बेसिक डेफिनीशन है, इसी से सारे डेरिवेशन आएंगे, चाहे वो पॉइंट चार्ज का हो, चाहे लाइन चार्ज का हो, चाहे इनफाइनाइट शीट हो, चाहे रिंग हो, सबके डेरिवेशन उसी से आते हैं। इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, या फिर बाद में गॉसेस ने एक यूजफुल लॉ दिया तो इंटीग्रेशन से बच जाते हैं, बिना इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं लाइन चार्ज का, इनफाइनाइट शीट का। ठीक है, तो विल सी दैट अपने कोर्स में है। तो पहले पॉइंट चार्ज का अपने कोर्स में वो सीखते हैं। तो सपोज ये चार्ज क्यू है और ये पॉइंट पी पर हमें फील्ड निकालनी है जो कि आर डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू नॉट रख देंगे और उस पर फोर्स निकालेंगे कूलम लॉ से। तो यहाँ पे देखो इतना फोर्स लगेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, मॉड में ही रखा अभी हमने, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना। फिर हमने फील्ड का भी जो ऊपर फार्मूला फील्ड की डेफिनेशन सीखी थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसमें वैल्यू पुट कर दी, ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बस। तो क्या फील्ड आई, वन के की वैल्यू पुट कर दी, तो ये फील्ड अपनी आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। मॉड में क्यू लिखेंगे बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन हम सेपरेटली बताएंगे। टेक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टेक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शो डायरेक्शन सेपरेटली। ठीक है, तो कूलम्ब लॉ में था, कूलम्ब्स लॉ में दोनों चार्जेस थे Q1 Q2,
यहाँ पर जो Q2 था वो Q0 था, टेस्ट चार्ज वो कैंसिल हो गया, वो केवल टेस्ट चार्ज है, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। ये सोर्स चार्ज है, ये इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं ना। यहाँ पे लिखूँ मैं, दिस इज द सोर्स चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज है, ओके। तो टेस्ट चार्ज इज फॉर टेस्टिंग ओनली, इट हैज़ गॉन, तो सोर्स चार्ज की फील्ड आ गई। चार्ज क्यू है, डिस्टेंस जो है पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस जो पॉइंट पी का चार्ज से जो है, जब 2-3 चार्ज होते हैं तो उस समय तुम्हारी मिस्टेक हो जाती है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लिखते हो, तो ये वो नहीं है, ये है जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है और पर्टिकुलर चार्ज जिसकी फील्ड निकालनी है उस चार्ज से डिस्टेंस है वो। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ई एंड आर का ग्राफ, है ना। तो ई जो है यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो आर बढ़ने से फील्ड कम होती है और फास्ट रेट से कम होती है, स्क्वायर रेट से। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड नीचे आएगी, ऐसे कर्व्ड इनफाइनाइट पे ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और ये ई वर्सेस 1/r² का ग्राफ, है ना। तो ये होमवर्क में है, कल हम डिस्कस करेंगे, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। तो इसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। अगर मीडियम सपोज वैक्यूम नहीं है, दूसरे मीडियम में है, तो उस मीडियम की जो है, उस मीडियम की व्हाट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वैक्यूम की परमिटिविटी को, है ना। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, इसको मैं हाइड करता हूँ, तुम सॉल्व करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस रूट ऑफ 1.6 मीटर इन लिक्विड ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 100, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, तो मॉड में चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्शन सेपरेटली बतानी है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दो, ऊपर वाला जो था ये वाला, इसमें Q दिया है, R दिया है, ये दो अननोन होते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये भी दिए होंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये Q दिया है, R दिया है, ओके। तो यहाँ पर ये ऐसा फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बनेगा, E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ लिख देंगे, नीचे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ जाएगा, मॉड Q अपॉन R²। तो 9 × 10⁹ आ गया, और एप्सिलॉन R जो है, बाकी वैल्यू तो हमें पता ही है ना। देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमें 9 × 10⁹ होती है, ये बच गया बस, उसको हमने सेपरेटली नीचे लिख दिया। तो R एप्सिलॉन R इज़ 100 गिवन, तो 100 लिखो उसको, रिलेटिव परमिटिविटी 100 है। चार्ज मॉड में लिखेंगे तो माइनस चला जाएगा, ये रूट 1.6 का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ स्क्वायर होने के बाद, है ना। तो 9 बचा हुआ है, और पावर अगर तुम जस्ट सिंप्लीफाई करके देखो तो ये -12 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। गॉट इट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस मीडियम चेंज किया था, वैल्यूज़ डायरेक्ट थी, तो यू कैन डू इट इजली। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं लेट मी रिमाइंड यू अगेन, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है रेडियली मीन अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, सेंट्रल फील्ड होती है। नेगेटिव चार्ज की फील्ड उसकी खुद की तरफ होती है। और कहाँ से एरो स्टार्ट करना है, जिस पॉइंट पे पूछा है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज की फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट से स्टार्ट करो, एरो दूर जाने दो उस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से। नेगेटिव चार्ज की फील्ड निकालनी है, फिर से मैं यहाँ पे, चलो क्वेश्चन आएगा तो फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, या फिर नहीं तो फिर से बता देता हूँ। जैसे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो रेडियली आउटवर्ड यहाँ से स्टार्ट करो, डायरेक्शन केवल उधर, मैग्नीट्यूड तुमने निकाला, है ना। अगर ये सपोज नेगेटिव चार्ज है,
इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो रेडियली पहले ज्वाइन कर लो, सेंट्रल है तो यहाँ पर इधर, क्योंकि जब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वह इधर फोर्स लगेगा, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे इधर फोर्स लगेगा, तो नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट हमने सीखे हैं, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की फील्ड रेडियली इनवर्ड टूवर्ड्स इट। तो ये काम आएंगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, अगर मोर देन वन चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस के लिए हमें वेक्टर लॉ लगाना पड़ता है, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे सपोज ये Q1 है, इसकी पॉजिटिव है, जो इसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है तो इसकी फील्ड इधर होगी। तो दोनों का एंगल थीटा है तो वेक्टर लॉ से ऐड कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, जैसे फोर्स में किया था मैग्नीट्यूड जब निकालना है ना। तो लेट्स सी, ये 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, Q1 की फील्ड यहाँ पर 10 SI यूनिट है, Q2 की भी 10 SI यूनिट है, इधर दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो नेट फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर। तो जब एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 0, 60, 90, 120, 180, फोर्स में भी ऐसा किया था हमने। तो ये ट्राई करो और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न कर लो, है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था इक्वल फील्ड या फोर्सेस या वेक्टर होते हैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं। √3 टाइम्स आता है किसी में √2 टाइम्स आप ईच फोर्स आएगा या ईच फील्ड आएगा, है ना। तो ये ट्राई करो एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखो ये NCERT बुक का क्वेश्चन है 1.8, है ना। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्या, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ये 2 चार्जेस है 3 एंड -3, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखते जाते हैं, तो 3 जो है माइक्रो 10⁻⁻6 और यहाँ पे -3 माइक्रो 10⁻⁻6। कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB द 2 चार्जेस। देखो ठीक है, तो पहले तो मिड पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। OA will be equal to OB, that will be equal to R, that is 10 सेंटीमीटर, that is equal to 0.1 मीटर, ठीक है। क्योंकि इन दोनों चार्जेस की हम मिड पॉइंट पे फील्ड लिखने जा रहे हैं, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। अभी ये वाला A वाला पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड इधर आ जाएगी, EA कितनी होगी, EA KQ/R², तो 9 × 10⁻⁹, Q कितना है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2.7 कर लें, 10⁻, ये कितना हो जाएगा, 9, 1 10 हो गया 11, है ना। तो ये कितना 6 बचने वाला, क्या 9, है ना। ओके चेक कर लो, 9 और ये 10 और इसकी भी 1 डेसिमल 11, -5 +5 आ रहा क्या, ठीक है। ओके ऐसे ही दूसरे वाले की देखो, फील्ड ऑफ चार्ज एट B, तो KQ/R², तो ये भी वही कंडीशन है, 10⁹ मॉड में लिखेंगे इसको -3 × 10⁶, ये स्क्वायर है ना, तो इसलिए एक पावर और बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर था नीचे 0.1 स्क्वायर, तो ये भी इतने आएगा 2.7 × 10⁶, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखो ये माइनस है तो माइनस की भी इधर ही होगी, खुद की तरफ होती, माइनस प्लस की तो रेडियली अवे है तो वैसे, और माइनस है ये चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फील्ड उसकी भी इधर ही होगी। तो E1 EA एंड EB दोनों एक ही तरफ है,
तो वेक्टर से क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ई नेट विल बी ई ए प्लस ई बी, एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल है, तो ये ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5.4 आ जाएगा ये, इंटू 10⁶ न्यूटन। तो coming back, just a minute, let me put it in the aeroplane mode. Okay, we continue. Sorry for disturbance. Newton per coulomb. Now this is the along AB, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड सो एंड सो इज प्लेस्ड, so and so is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे हम पुट करेंगे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई नेट ले लेंगे ये वाला, और टेस्ट चार्ज है वो दूसरा चार्ज है, उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 1.5 इंटू 10⁻⁹ एंड ये ई नेट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलॉन्ग ए बी, है ना। तो नेगेटिव चार्ज जो है क्या होगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो इसकी ए वाला चार्ज इधर खींचेगा और ये भी नेगेटिव, ये भी इधर भगाएगा, इसलिए अलॉन्ग ए बी, है ना। तो हम फोर्सेस से आइडिया लगा सकते हैं कि चार्ज की डायरेक्शन किधर होती है ना, आई मीन फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है। दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेलिंग एक्शन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होता है। तो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.6। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे -5 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस। नेट फोर्स निकालना है, यहाँ पर नेट फील्ड निकालनी है यहाँ पे। तो इफ़ यू सी केयरफुली, ये 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड इधर आएगी, ये -3 है तो इसकी फील्ड इधर आएगी, ये 2 है तो ये इसकी इधर आएगी, ये -5 है तो इसकी इधर आएगी। -5 वाले की थोड़ी बड़ी होगी, बट ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो सिमेट्रिक सिचुएशन है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एफ नेट विल बी 0, ठीक है। तो यू कैन राइट द diagonally opposite charges are equal and therefore their fields will be at the midpoint will be opposite and equal, it will get cancelled and -5 माइक्रो कूलम वाले की भी दूसरा -5 माइक्रो कूलम कैंसिल कर देगा। तो यू हैव टू जस्टिफाई, है ना, यू हैव टू एलैबोरेट द आंसर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और यू कैन जस्ट वैल्यूज आर गिवन, यू फाइंड आउट सबका 2 माइक्रो कूलम का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डिस्टेंस भी दी है, डिस्टेंस जो है हाफ ऑफ द डायगोनल निकालनी है, साइड की डिस्टेंस दी है तो √0.1² प्लस √0.1² एंड उसको आधा कर लो तो हाफ ऑफ द डायगोनल आ जाती। तो यू जस्ट सॉल्व इट, तुम्हें आंसर तो पता ही है। एंड ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 25 करना है, ये होमवर्क में, ये अभी मैंने नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इज द ये जो जस्ट लेट मी रीड इट, I am explaining you, then will an oil drop और 12 excess electrons, एक oil drop है उस पर 12 excess electrons हैं, is held stationary under the constant electric field of so and so value in Millikan's oil drop experiment। ये जो Millikan's oil drop experiment is well known experiment, ठीक है।
तो दिस इनफैक्ट प्रूव द क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ द चार्ज, है ना। जैसे सपोज फील्ड जो है इसके ऊपर जो है मास ऑयल ड्रॉप है, उसका मास m है, तो mg ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, और उसके ऊपर एक्सेस चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर बैलेंस कर सकती है। ये Q इज द एक्सेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है तुम्हें। मास निकालने के लिए डेंसिटी दी हुई है, रेडियस दी है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो नीचे mg है और ऊपर QE उसको बैलेंस कर लेगा। तो इससे उसने मिलीकॉन्स ने जो है कई ऑयल ड्रॉप का जो कैलकुलेशन किया और चार्ज निकाल के देखा, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E आया, है ना, 1E 2E 3, है ना, इस तरह से आया। तो इट इज़ अ वेल नोन एक्सपेरिमेंट, एंड यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू QE। ऊपर हमने सीखा था अभी फोर्स अंदर चार्ज कितना होता है, Q इंटू फोर्स अंदर चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इंटू E, है ना। इसको देखो एक पॉइंट और बता दूं फोर्स अंदर चार्ज के बारे में, Q इंटू E जो है ना, जो हमने अभी डिराइव किया था, यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू Q इंटू E। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट है। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, देखो ध्यान से इसको। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स Q इंटू E होता है, ग्रेविटेशन में Q का इक्विवेलेंट मास होता है, M इंटू E होता है वहाँ पे, लेकिन E क्या होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ पे F इज इक्वल टू हम M इंटू G लिखते हैं। G जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्विवेलेंट होता है अर्थ का, तो F इज इक्वल टू mg, यहाँ पे F इज इक्वल टू QE, है ना। E इज इक्वल टू G इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है उसके बारे में सीखा है। इनफैक्ट जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें जो फोर्स होता है ना, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, उसमें क्या होता है, पहला चार्ज पहले अपनी फील्ड बनाता है और दूसरा चार्ज उसकी फील्ड में होता है, तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो दैट इज़ हाउ इट गोज़। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, अपनी फील्ड, एक चार्ज अपनी फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस करता है अप टू इन्फिनिटी वीकन से। जब दूसरा चार्ज वहाँ पे आया तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, फिर दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने आज क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा, है ना। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देयर, है ना, या 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है उतनी फील्ड होती है ना। फिर हमने देखा कि एक चार्ज पॉइंट चार्ज की फील्ड देखी KQ/R², Q को मॉड में लेंगे बिकॉज उसका डायरेक्शन सेपरेटली दिखाई जाती है। मल्टीपल चार्जेस हैं तो उसको वेक्टर लॉ से ऐड करते हैं ना, वेक्टर लॉ से ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, है ना। उसके बाद जो है ये मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का मैंने बताया, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स QE से बैलेंस हो जाएगा, फिर अननोन निकाल लेंगे, उसमें बाकी सारे पैरामीटर दिए हुए हैं तो वी कैन फाइंड आउट, है ना। तो some more questions I want to give you in the homework। एक क्वेश्चन ये देखो है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ दिस क्वेश्चन। ये 10 माइक्रोकूलम है और 40 एंड 10 माइक्रोकूलम है, 12 मीटर पे रखे हुए हैं ना। तो हमें पता करना है पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर नेट फील्ड इज 0, है ना, नल पॉइंट बोलते हैं उसको, है ना। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 40 वाला, जो है ये 40 वाला है वो इसकी फील्ड इधर आएगी, ये 10 वाला है इसकी फील्ड इधर आएगी। तो एक्स डिस्टेंस पे ले लेंगे और दोनों की फील्ड लिख के अपोजिट डायरेक्शन में E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू 0 और E1 विल बी इक्वल टू E2 इक्वेशन बनेगी, उसको रूट लेके सॉल्व करेंगे, है ना। डिस्टेंसेस का जो एक में डिस्टेंस x लेंगे, दूसरे में 12 माइनस एक्स लेंगे, स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट ले लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, है ना। फिर इसका सेकंड पार्ट भी ये है कि 10 को -10 से रिप्लेस कर दो तब कितनी फील्ड आएगी, ठीक है, तब कहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो लाइक दिस एंड लेट्स सी होमवर्क में असाइनमेंट में क्या है। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्सप्लेन हो गया था एंड क्वेश्चन नंबर 16 करना है तुम्हें। पॉइंट चार्ज हैविंग द चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल, नहीं, डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट्स, वन इज़ क्यू और दूसरा इज़ क्यू माइनस क्यू, मतलब इसमें से हमने माइनस क्यू माइनस कर लिया तो इतना बचा और उस क्यू को पास में रख दिया. इफ़ टू पार्ट्स एग्जैक्ट मैक्सिमम फोर्स ऑन ईच अदर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू, मतलब कितना चार्ज निकाल के बाजू में रखें कि दोनों चार्जेस के बीच में जो निकाला वो और बचा हुआ कि मैक्सिमम फोर्स आए. तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना, जिसमें इक्वेशन बना के डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको ज़ीरो पुट करते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं तो अपना मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन आ जाएगी. ऐसे ही ये दो क्वेश्चन है. रिफर द डायग्राम एंड फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट सी, है ना, ये वन है, ये वन है, ये टू है, ये टू है. तो ये तो अभी सॉल्व ही हो गया था ना, अभी हमने ऐसे किया था. 18 में थोड़े अनइक्वल है, कैंसिलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब हमें बताना पड़ेगा पॉइंट सी पर फील्ड जो है की डायरेक्शन क्या होगी. दैट्स ऑल, कैलकुलेट नहीं करना. ये क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है. तो मैंने बताया था वेरिएबल होती है तो हमें एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल होगा. एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगती है, काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगेगी तो हमें इंटीग्रेशन से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. तो ये क्वेश्चन नोट करो. चार्ज क्यू ऑफ द मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द फील्ड E इज इक्वल टू 3t स्क्वायर वेयर t इज टाइम. फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज आफ्टर टाइम t, है ना. तो ये 19th है कि 20 की हमने प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ी है तो हम नहीं कर सकते उसको. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे देन 20 ऑनवर्ड क्वेश्चन देखेंगे. तो दिस इज़ वन क्वेश्चन, दिस इज़ अदर. ये अभी सिमिलर किया था हमने 17, उसका आंसर तुम्हें पता लग गया. ये मैक्सिमम मिनिमा से हम करेंगे ये क्वेश्चन एंड पीछे दो क्वेश्चंस. दैट्स ऑल.